مہنگائی کے حوالے سے کچھ بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ شہر ایک روٹی کی قیمتیں مختلف، ضلع انتظامیہ کی سستی کے باعث تنور مافیا کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ کئی علاقوں میں روٹی 20 روپے اور بعض مقامات پر 15 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ لکشمی چوک، اندرون شہر مزنگ اور فتح گڑھ کے علاقوں میں روٹی 20 روپے میں فروخت ہونے لگی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک میں مہنگائی کے وار جو ہے وہ مسلسل جاری ہیں۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب نان اور روٹی کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے نان کی جو قیمت ہے وہ 25 روپے مقرر کی گئی ہے اور اسی طرح روٹی کی جو قیمت ہے وہ 15 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں نان جو ہے وہ 30 روپے کا اور روٹی جو ہے وہ 20 روپے کی ہے وہ بیچی جا رہی ہے۔ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ بتائیے گا، حکومت نے یہ قیمتیں مقرر کی گئی ہیں، 25 کا نان، 15 کی روٹی، لیکن مارکیٹ میں جو ہے 30 کا نان بک رہا ہے اور 20 کی روٹی، تو کیا حکومت کو کیا کہیں گے، کیا وجوہات ہیں؟ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ حکومت نے اناؤنسمنٹ تو کی ہے 25 کا نان اور 15 روپے کی روٹی، پر مل تو کسی جگہ پہ بھی نہیں رہا۔ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ کچھ انہوں نے گیس وغیرہ مہنگی کی ہیں، تو ان کو بولتے ہیں کہ جی یہ 25 کا نان اور 15 کی روٹی کا آرڈر کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ابھی تک جو ہے نا ہمیں نہ گیس سستی مل رہی ہے، نہ وہ آٹا، نہ وہ میدا جو ابھی جو بھی ہے، اس کے علاوہ لیبر کی جو ان کی ہے مزدوری وغیرہ وہ بھی ان کی رینج میں نہیں آ رہی۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ مد نظر رکھنی چاہیے، گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ باقی تو کیا حکومت کا کام صرف اور صرف اعلان کر دینا؟ ظاہری بات ہے سر، اعلان کر دیا تو اعلان کر کے ختم ہو گئے۔ ظاہری بات ہے کوئی ٹیم بنانی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، یہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں کافی ہیں، خالی نان روٹی تو نہیں ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، دودھ دہی ہے، سبزی ہیں، دالیں ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ جی بالکل، یہ تندور مالک تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت نے اعلان تو کر دیا لیکن آٹے کے جو سپلائی ہے وہ بھی متاثر ہے، آٹا نہیں مل رہا، میدا نہیں مل رہا، جبکہ گیس جو ہے وہ بھی بالکل نہیں آ رہی، سلنڈر جو ہے وہ ان کو لگانا پڑ رہا ہے، مزدور ہیں، مزدوروں کو مزدوریاں بھی جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں، مہنگائی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی مزدور کو بھی اس کے مطابق جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کی جانب سے اعلان تو کر دیا گیا لیکن مارکیٹ میں جو ہے وہ اس ریٹ پہ چیزیں نہیں مل رہی۔ تندور مالکان کا بھی یہی کہنا کہ پیچھے سے جو ہے وہ چیزیں سستی کی جائیں تاکہ ہم بھی آگے سے جو ہے وہ نان اور روٹی ہے وہ سستی بیچ سکیں۔ بہت شکریہ زین اس تفصیل کا۔ مہنگائی کا پہیہ مسلسل روان دوا، برائلر گوشت اور فارمی انڈے عام آدمی کی پہنچ میں نہ آ سکے، سبزیوں اور پھلوں کی خریداری بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ عوام کہتے ہیں حکومت مہنگائی پر توجہ نہیں دے رہی۔ مہنگائی میں کمی نہ آئی، برائلر گوشت کی قیمت میں کوئی کمی پیشی نہ ہوئی۔ مرغی کا گوشت کی فی کلو قیمت 633 روپے مقرر، فارمی انڈے 240 روپے فی درجن ہیں۔ سبزیوں میں آلو 80، پیاز 70 اور ٹماٹر 40 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ لہسن 350 اور ادرک 800 روپے فی کلو ہے۔ پھول گوبھی، بھنڈی، ٹینڈے 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ گھیا کدو 80 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے۔ پھلوں میں سیب 300 سے 400 روپے فی کلو ہے۔ مختلف اقسام کے آم 200 سے 280 روپے فی کلو مل رہے۔ تربوز 40 سے 50 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلے اسپیشل 400، درجہ اول 250 اور درجہ دوم 200 روپے فی درجن ہیں۔ عوام کہتے ہیں لگتا ہے مہنگائی حکومت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ مہنگائی نے تو کمر توڑ دی ہے۔ ایکچولی جو بجٹ بھی پیش کیا گیا میری نظر میں تو وہ بھی بس میری سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی تنخواہ بڑھا دیں گے، اتنی پینشن بڑھا دیں گے، لیکن ایکچولی تو گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ جب پیسے ہی نہیں ہیں تو لوگوں کو پیسے کہاں سے لا کے دیں گے؟ یہ سوچ میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ کیا لیں اور کیا نہ لیں۔ ایک دکان سے پوچھتے ہیں تو شاید آس آتی ہے انسان کے ذہن میں کہ اگلی والی دکان پہ جائیں، تو پتہ چلتا ہے کہ دکاندار کا قصور نہیں ہے۔ اوپن مارکیٹ میں سرکاری ریٹ لسٹ کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، دکاندار من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آٹے اور گھی کے نرخوں میں تیزی رک گئی۔ آٹے کے بعد گھی کے نرخوں میں بھی معمولی کمی۔ مارکیٹ میں درجہ اول خوردنی تیل کی قیمت 610 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ درجہ اول گھی 600 روپے فی کلو تک دستیاب۔ چند روز میں آٹا 10 روپے فی کلو سستا ہوا۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1150 سے 1200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں زاہد عابد سے۔ جی زاہد۔ جی بالکل، کھلی مارکیٹ میں گندم کے نرخ کم ہونے کی وجہ سے آٹے کے نرخ میں بھی جو تیزی دیکھی جا رہی تھی وہ اب کچھ رکی ہوئی نظر آ رہی ہے اور گزشتہ چند روز سے آٹے کی قیمت میں استحکام دیکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت 10 کلو آٹے کا تھیلا تقریباً 1150 سے 1200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2300 سے 2350 روپے تک بیچا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو کھلا سرخ آٹا ہے وہ تقریباً 130 روپے اور
सफ़ेद फ़ाइन आटा जो है वो तकरीबन 160 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है, और इसी तरह चक्की का आटा भी 160 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है, जिसकी कीमत पहले 170 रुपये थी और उसमें 10 रुपये फ़ी किलो कमी हुई है चंद रोज़ पहले तक। इसी तरह घी की कीमत में भी कुछ कमी देखी गई है। गुज़श्ता दिनों आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतें कम होने की वजह से मुकामी मार्केट में घी की कीमत कम देखी गई है। इस वक्त दर्जा अव्वल घी जो है वो तकरीबन 600 रुपये फ़ी किलो और खुर्दनी तेल तकरीबन 610 रुपये फ़ी लीटर दस्तयाब है, जबकि दर्जा दोम 560 और 570 रुपये तक बेचा जा रहा है। ताहम चीनी की सूरत हाल इसके बरक्स है। चीनी की कीमत बदस्तूर 120 से 125 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है, और इसमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। गो के हुकूमती नर्ख जो मुकर्रर किया गया था वफाकी हुकूमत की जानब से वो 98 रुपये 82 पैसे मुकर्रर किया गया था, लेकिन चीनी की कीमत ज़ायद पर फ़रोख्त बदस्तूर मार्केट में जारी है और उसमें कमी होती हुई नहीं देखी जा रही। लेकिन आटे और घी की कीमतों में गुज़श्ता चंद रोज़ में कुछ कमी देखी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ाहिद। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से सिंध पुलिस के ज़ेर तरबियत DSPs के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिंध पुलिस के वफ़द का खैर मकदम किया। निगरान वज़ीर आला का कहना था, सिंध से आने वाले अफसरान हमारे मेहमान हैं, अच्छे कामों में नाम पैदा करें जो आपकी पहचान बने। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत। जी, निगरान जिला पंजाब सैयद मुर्शद रज़ा नकीब ने जो है वो सिंध पुलिस के अंडर ट्रेनिंग DSPs हैं उनके वफ़द से मुलाकात की, और उनका कहना था कि जो अफसरान आवाम की खिदमत करते हैं और दिल में बसते हैं उन्हें तकर्री के लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। निगरान वज़ीर आला ने सिंध पुलिस के अंडर ट्रेनिंग अफसरान का खैर मकदम किया, और इस मौका पर सिंध पुलिस के अंडर ट्रेनिंग अफसरान ने पंजाब हुकूमत की मेहमान नवाजी पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि सिंध से आने वाले अफसरान हमारे मेहमान हैं और साहिल से अच्छा सलूक अच्छे पुलिस अफसर की पहचान है। रवायती तल्लुकात की बजाय लोगों से मजबूत तल्लुकात इस्तवार करें, अच्छे कामों में नाम पैदा करें जो आपकी पहचान बने। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस और दीगर अफसरान को आउट ऑफ वे आवाम की मदद और खिदमत करनी चाहिए। साहिल की मदद के लिए जो आउट ऑफ बॉक्स का कार्य है उसे अख्तियार करने में कोई अमर माने नहीं। कैप्टन मुबीन शहीद जैसे अफसरान पंजाब पुलिस की शान और पहचान है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी इस मौका पर अफसरान से खिताब किया, और उनका कहना था कि हम सिंध पुलिस। ठीक है, लियाकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया लियाकत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी अलहमरा हॉल में इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। मुल्क में एहतजाज हुए हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आपने उन शुहदा को, जिन शुहदा ने इस मुल्क के लिए जान दी, जिनके बच्चे इस वतन के लिए यतीम हुए, और हम अपने बच्चों के सरों पर कायम हैं, आपने उन शुहदा की यादगारों को तोड़ा। आप मुझे बताइए कि आपके वो शहीद नहीं थे? कोई सोच सकता है कि शहीद की यादगार को तोड़ा जाए? कोई सोच सकता है कि मस्जिद को जलाया जाए? कोई सोच सकता है कि कुरान करीम की बेहुरमती की जाए? अगर तुम पाकिस्तानी हो और तुम मुसलमान हो तो इस बात का जवाब दो हमें। मेरा सवाल है कि जना हाउस, इससे भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है, चले कोर कमांडर हाउस कह लेते हैं, उसमें जो मस्जिद थी उसको तोड़ने वालों को आप क्या कहेंगे? उसमें आग लगाने वालों को आप क्या कहेंगे? उसमें मुकद्दसात की तौहीन करने वालों को आप क्या कहेंगे? और फिर हम कहते हैं सियासत सियासी मैदान में की जाए, सियासत सियासी मैदान में की जाए। ये कौन सी सियासत है कि गुज़श्ता 1.5 साल से आपने पाक फौज को निशाना बनाया हुआ है? और मैं ये कहना चाहता हूं उलमा मशाइख, आज ज़राए इब्लाग के जरिए भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान उलमा कौंसिल का रोज़ अव्वल से मौक़िफ़ ये रहा है कि इस वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज और कौम का एक होना जरूरी है। कोई भी हो, कहते हैं कल फलाने ने भी कहा था, अगर फलाने ने भी कुछ कहा था तो उसने भी गलत कहा था, अगर फलाने ने भी किया था तो उसने भी गलत किया था। वो कोई भी हो जो ये चाहता है कि पाकिस्तानी कौम और फौज के दरमियान
तकसीम पैदा हो, उसके सामने सबसे बड़ी रुकावट हम होंगे, सबसे बड़ी दीवार हम होंगे। मैं आज चंद बातें संजीदा करना चाहता हूं, और ये 2-3 रोज में हमने उलमा मशाइख को यहां जमा किया है, जो कहते हैं ना हमें अवामी कुव्वत पे बड़ा नाज है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की अवाम, बेटा आप साइड पे हो जाएंगे क्यों, पाकिस्तान की अवाम अपने दीन के साथ है, पाकिस्तान की अवाम अपने वतन के साथ है, और पाकिस्तान की अवाम अपनी फौज के साथ है। तुम्हें गलत फहमी है, तुम गलत फहमी के शिकार हो। तुमने किया क्या? तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। और इधर हमारी तरफ देखो, 8000 शुहदा की लाशें हमने उठाई हैं। आम आदमी नहीं था, मुफ्ती निजामुद्दीन शामिज़ई जैसा ऐसा आलिम जिसको मशरिक और मगरिब सलाम करता था, हमने उसकी लाश उठाई है। इसी माल रोड के ऊपर हमने हाजी तैयब की लाश उठाई है। इसी शहर लाहौर के अंदर हमने अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की लाश उठाई है। हमने इसी शहर के अंदर शिया व सुन्नी उलमा की लाशें उठाई हैं। 8000 उलमा इस मुल्क में कुर्बान हुए। हमने कभी नहीं कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमने हमेशा कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बात की जाती है कि जरदारी साहब ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद कहा था पाकिस्तान खपे। बिलाशुबा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडर थी, लेकिन हमारे उलमा मौलाना यूसुफ लुधियानवी से लेकर मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी तक, ये भी कोई छोटे लोग तो नहीं थे, ये भी कोई आम लोग तो नहीं थे। इनके पीछे भी करोड़ों जाने देने वाले थे। लेकिन क्या किसी ने मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, चर्चों में शहादतों और लाशों को उठा के कभी जाके कोर कमांडर हाउस जलाया? कभी मस्जिदों की बेहुरमती की? कभी इमाम बारगाहों की बेहुरमती की? कभी शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की? कहते हैं जी ये फौज की हिमायत करते हैं। हाँ, हमें फख्र है, ये फौज मेरी है, ये ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज है। ये मेरा फौजी सियाचिन के पहाड़ों पर, अफगानिस्तान से मुत्तसिल बॉर्डर पर, ईरान से मुत्तसिल बॉर्डर पर, हिंदुस्तान से मुत्तसिल बॉर्डर पर रात को अल्लाह से शहादत मांगता है, ना ओहदा मांगता है, ना माल मांगता है। मैं उस फौजी को सलाम न करूं? और हमें पता है एक अमरल्ला साले है जिसने इस पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार रचाया, और एक ज़ल्मे खलीलजाद है जो अपने वतन का गद्दार है, जिसको कभी अफगानिस्तान की बेटी याद नहीं आई, जिसको कभी आफिया सिद्दीकी याद नहीं आई। आज उसको पाकिस्तान की बड़ी दर्द हो रही है। तो जान लो पाकिस्तानियों कि जो पाकिस्तान में बम धमाके करते थे, जो पाकिस्तान में खुदकुश हमले करते थे, जो पाकिस्तान की मस्जिदों, इमाम बारगाहों, चर्चों, बाजारों और पार्कों को लहूलुहान करते थे, अगर आज उनको किसी के लिए तकलीफ हो रही है तो क्या वो पाकिस्तान के दोस्त है? बोलो जरा, जोर से बोलो जरा। अगर ज़ल्मे खलीलजाद को तकलीफ हो रही है, कहता है इंसानी हकूक, इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स, और ज़ल्मे खलीलजाद अगर तेरे में 1% गैरत है, तू अमरीकी नुमाइंदा है, आफिया सिद्दीकी 20 साल से जेल में पड़ी है, उसको वापस पाकिस्तान भेज, हमें समझ आए तुझे इंसानी हकूक की बात है। लेकिन तू तो ऐसा बेहया है, ऐसा बेगैरत है कि तूने अपने वतन अफगानिस्तान की बेटी के ऊपर बमबारी करवाई है। तू आफिया सिद्दीकी को कहां से रिहाई की बात करेगा? और वो अमरल्ला साले जिसने इस मुल्क में खुदकुश हमले करवाए, जिसने इस मुल्क के अंदर बम धमाके करवाए, जिसने मस्जिदों को लहूलुहान किया, अब वो भी मैदान में आ गया है। रब्बे कायनात की कसम, तुम क्या, तुम्हारे आबाओ अजदाद भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के सलामती के इदारों के खिलाफ मैदान में निकलेंगे, तुम्हारा मुकाबला हमें करना आता है। हम वही फटी पगड़ी और टूटी जूती वाले हैं जिसने तुम्हें जूते मार मार के अफगानिस्तान से निकाला है। तुम्हें हमारी तारीख पता होनी चाहिए।
استحकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन बरतानिया रवाना। जहांगीर तरीन बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन एक हफ्ते से ज़ायद बरतानिया में क़याम करेंगे। ज़राए के मुताबिक जहांगीर खान तरीन लंदन में अपना तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिएगा। काम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन बरतानिया रवाना हो गए हैं। वो बरतानिया में बुनियादी तौर पर अपने तिब्बी मुआयने के लिए गए हैं। हर साल वो तिब्बी मुआयने के लिए जाते हैं और ये विजिट भी उनका तिब्बी मुआयने का ही हिस्सा है। ताहम इस दौरे के दौरान वो बरतानिया में क़याम के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे और एक हफ्ते से ज़ायद उनका बरतानिया में क़याम रहने की उम्मीद है। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया।